وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن و بارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع ہے غیرت کہاں چلے گئی۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ کے ایم قاسم رضوی حافظ اللہ موجود ہیں۔ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ جانے پہچانے ہیں، اور AIGC کے پلیٹ فارم سے شیخ محترم کے کئی دروس ہو چکے ہیں۔ موضوع بہت اہم ہے، اسی لیے تمام ساتھیوں سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنے آڈیو اور ویڈیو کو بند رکھے اور موضوع کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ تو میں بلا تاخیر اب شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع غیرت کہاں چلے گئی اس موضوع پر خطاب فرمائے۔ فلتفضل شیخ کے ایم قاسم رضوی عمری حافظ اللہ مشکورا و معجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ برادران اسلام، مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے غیرت کہاں چلی گئی۔ ماشاءاللہ ابھی جن صاحب نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی، اس موضوع کے مناسبت سے بہت ہی بہترین آیتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کے خمیر کے اندر، یعنی اس کی اصلیت کے اندر ہر بھلائی کو رکھا ہے کہ وہ ہر بھلائی کو آسانی کے ساتھ قبول کر سکے اور ہر بھلائی کو عمل میں لا سکے اور ہر بھلائی اس کے اندر بدرجہ اتم حلول کر سکے، یعنی اس کے اندر اتر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن و دماغ کو اتنی صلاحیت دیا ہے کہ وہ ہر برائی کو برائی سمجھے اور اس برائی سے دور رہنے کی کوشش کرے، اور اسی میں اس کے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ تو یہ بات پہلے ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، روٹی پکانا ہے تو آٹا بھی بہترین ہو، تازہ تازہ ہو، اچھا ہو، اور اس کے اندر جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ بھی صاف اور شفاف ہو، اور نمک وغیرہ جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی اچھا ہو، اور جو تیل وغیرہ ڈال کر روٹی بناتے ہیں، اگر یہ تین چاروں چیزیں اگر اچھی ہیں، مزیدار ہیں، تو اس سے بننے والی روٹی بھی اچھی بنتی ہے۔ اور اگر ان چیزوں کے اندر کمی بیشی ہے یا ان کی لذت یا ان کے مزے کے اندر فرق ہے تو پھر بننے والی روٹی بھی اچھی نہیں بن سکتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہترین انداز میں، ایک بہترین نمونے میں پیدا فرمایا۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایک بہترین نمونہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین عقل اور شعور اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر کے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرت، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اب وہ لمبی حدیث ہے، میں آپ کو صرف اسی بات پر آپ کو لے کر چلوں گا کہ فطرت کسے کہتے ہیں۔ فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جس وقت پیدا کیا تو اس کے سرشت کے اندر، اس کے بناوٹ کے اندر، اس کے پورے ذہن میں اللہ تعالیٰ یہ
मादा वदियत करके रखा है। वदियत का मतलब रखा है, समझने की कैपेसिटी और अंडरस्टैंडिंग पावर जिसे कहते हैं, वो अल्लाह ताला रखा है कि इंसान अच्छे को अच्छा समझे और बुरे को बुरा समझे, और अच्छे को अच्छा समझकर उसे अपनाए और उस अच्छाई को लोगों तक पहुंचाने और फैलाने की कोशिश करे। और अल्लाह ताला इंसान के जिबिल्लत के अंदर और इंसान की असलियत के अंदर ये बात रखा है कि वो बुराई को बुरा समझे और खुद भी दूर रहे और लोगों को बुराइयों से दूर करने की कोशिश करे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की भलाई के लिए तुमको निकाला गया है, निकाले गए हो तुम। किस भलाई के लिए? वहाँ लिन्नास के माने में लाम जो है वो लोगों के फायदा पहुंचाने के लिए आपको बनाया गया है इस उम्मत को। तो उसका बड़ा अजीम मकसद क्या है कि तुम तअमुरुना बिल मारूफ, नेक कामों की तरफ, अच्छे कामों का हुक्म दो, और तनहौना अनिल मुनकर, और बुरे कामों से तुम रोको। तुम खुद भी रोको और दूसरों को भी रोको। अगर पहले हम खुद नहीं रुकेंगे तो फिर दूसरों को क्या रोक सकेंगे? अगर हम नहीं रुकेंगे, अगर हम मुनकरात में शामिल होंगे, तो फिर दूसरों को अगर हम बताएंगे तो कहेंगे कि भाई आप खुद मुनकरात में शामिल हैं, हमको क्या रोकते हो? तो इसलिए पहले हम खुद मुनकरात से रोकना है और दूसरों को भी रोकना है। तो ये तमहीद थी आज के उन्वान के लिए। आज के उन्वान के बारे में जो बताया गया है कि गैरत कहाँ चली गई, तो अभी गैरत किसे कहते हैं, तो इस गैरत को समझाने के लिए मैं ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझाया कि अल्लाह ताला इंसान के दिमाग और दिल के अंदर क्या चीजें रखा है, ये हम समझ जाएंगे तो उसके बाद गैरत समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, गैरत के माने ये हैं कि इंसान एक गलत बात को देखकर उसका जज्बा-ए इस्लाह, यानी उसको सुधारने का जज्बा जागे और उस गलत चीज को गलत समझे और उसका दिल उस चीज पर शर्मिंदा हो, उस चीज को देखकर खामोश रहने से, और उसके अंदर उसको इस्लाह करने या उस चीज को अपनाने की, सही चीज को अपनाने का शौक जागे, तो उसे कहते हैं गैरत। और बुरे काम को देखकर उस पर, उसकी वजह से उसके दिल के अंदर दर्द हो, उस बात को सुनकर उसके दिल के अंदर दर्द हो और उस चीज को सहा ना पाए, तो इसे कहते हैं गैरत। तो सबसे बड़ी गैरत वाली जात जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हदीस के अंदर आता है, इन्नल्लाह गयूरुन, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला बहुत बड़ा गयूर है, बड़ी गैरत वाला है, बड़ी गैरत वाला है। तो गैरत का मतलब क्या है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, और जब इंसान अल्लाह की इबादत छोड़कर दूसरों की इबादत में जाता है, लगता है, जैसे बुतों की, पत्थरों की, दरख्तों की, या जैसे मुसलमान खबरों का तरफ तवाफ करते हैं, घूमते हैं, सर झुकाते हैं, सर के बाल देते हैं और वहां जाकर लोगों को उनके नाम पर खाने खिलाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, वहां जाकर जानवर ज़बाह करते हैं। तो ये सारी चीजें जो अल्लाह के लिए एक इंसान करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह को छोड़कर दूसरों के सामने अगर ये सारे काम करता है तो अल्लाह को गीरत आ जाती है कि हाय हाय, अफसोस, ये बंदे को मैंने इसलिए पैदा किया था कि वो मेरी इबादत करे, मेरे सामने झुके, मुझसे दुआ मांगे, मुझसे अपनी हाजतें जरूरतें मांगे, लेकिन ये बंदा मुझे समझे बगैर कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह ताला की गीरत को बहुत ठेस पहुंच जाती है। तो गीरत कहते हैं ऐसी चीज जिसे इंसान संभाल ना सके और उस गलती और उस बुराई पर उसका दिल मचल जाए, तो अल्लाह ताला सबसे बड़े गैरतमंद हैं। अल्लाह ताला सबसे बड़े गैरतमंद हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला को ये बात कभी पसंद नहीं है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने झुके या दूसरों से मदद मांगे। क्यों? इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह ताला को गैरत आ जाती है। और जब अल्लाह का बंदा गलत कामों में, अल्लाह ताला के मना किए हुए कामों के अंदर शामिल होता है, बुराइयों में लथपथ होता है,
जब भी अल्लाह ताला को गैरत आ जाती है कि मैंने किस लिए पैदा किया इस बंदे को कि वो मेरी इबादत करे, मेरे अहकाम पर अमल करे और अमाल सालेहा करे, लेकिन ये इंसान गलत कामों में चले जा रहा है, तो अल्लाह ताला को बहुत गैरत आ जाती है। अच्छा, तो ये एक बात हुई अल्लाह ताला के ताल्लुक से। अब गैरत, अब वहाँ जो आप मौजू दिए हैं, उसमें ये पॉइंट हम आसानी से समझ सकते हैं कि आज हमारी गैरत इस मामले में कहाँ चली गई पता नहीं। क्यों? इसकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो है, वो गैरत उन कामों पर गैरुल्लाह की इबादत करते हुए देख करके गैरत जो सबसे ज़्यादा आती है, वो अल्लाह को आती है। लेकिन अल्लाह ताला तो हर इंसान को आकर के बताता नहीं है। लेकिन अब दूसरे दर्जे पर जो गैरत आनी चाहिए वो किसको? पैगंबरों को आनी चाहिए। जब जिस इलाके में जिस ज़माने में पैगंबर थे, उनको इस बात की गैरत आती थी और वो लोगों को समझाते थे, लोगों को बतलाते थे। अब पैगंबरों का ज़माना नहीं है। अब ज़िम्मेदारी किसकी है? एक बड़ी ज़िम्मेदारी उलमाए किराम की है, जो कुरान हदीस पढ़ते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह की गैरत को बंदों को याद दिलाएँ और अल्लाह ताला क्या चाहता है, बंदों को समझाएँ और खुद भी अमल करें और आवाम को भी उन बातों पर अमल कराने की कोशिश करेंगे, तो ये गैरत उस वक़्त जागती है। अगर आदमी देखकर भी कि लोग अवाम अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत कर रहे हैं, अगर देखकर खामोश चले जाता है, तो समझो कि उनकी गैरत जागी नहीं, बल्कि गैरत कहाँ चली गई पता नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात जो जिसे आसानी के साथ हम एक हदीस को देखकर इस लफ्ज़ को, इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि गैरत किसे कहते हैं, मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। एक आदमी है, उस आदमी की बीवी है, साथ में जा रही है, दोनों मियाँ-बीवी जा रहे हैं। तीसरा कोई मर्द, गैर मर्द उसकी बीवी को देखे और या इसकी बीवी दूसरे मर्द को देखे, तो जो दिल के अंदर जोश, जो गुस्सा और जो इंसान के अंदर ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है, तो फ़ौरन अपनी अपनी बीवी को क्या करेगा गैरत वाला आदमी, खींच के एक चपाटा उम, लगाएगा, एक तमाचा लगाएगा। क्यों? इसलिए कि उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि उसकी बीवी दूसरे की तरफ देखे या दूसरा आदमी उसकी बीवी को देखे। और अगर आदमी देखकर भी अनदेखी कर देता है, सुनकर भी अनसुनी कर देता है, खामोश रह जाता है, तो उस वक़्त कहते हैं, अरे! ये कितना बेगैरत आदमी है, इसकी गैरत कहाँ चली गई? क्यों? इसकी बीवी को कोई दूसरा आदमी देख रहा है, फिर भी इसके इसके ऊपर जूं रेंगे जैसा भी नहीं हो रहा है इसको। टस से मस नहीं हो रहा है, हालाँकि उसको उस वक़्त गुस्सा आना चाहिए और उसकी गैरत जागना चाहिए। इस बात को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज वाली हदीस से आसानी से समझ सकते हैं कि जब आप मेराज को गए, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे, तो जन्नत की सैर करा रहे थे, तो वहाँ एक बेहतरीन महल, जिसे आज के ज़माने में हम बंगला कह सकते हैं, बेहतरीन घर दिखाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल क्या ये मेरा घर है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह नहीं, ये आपका नहीं है, बल्कि ये आपके दोस्त और आपके सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है। बहुत बेहतरीन घर था, बहुत शानदार घर था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज़रत उमर के घर को भी देखा, महल को भी, और उनकी एक हूर जो थी वहाँ उस बंगले के अंदर, तो अचानक निगाह पड़ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपने निगाह फेर ली। अब वो वापसी के बाद मेराज से एक मौके में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से कहते हैं कि ऐ उमर, मैंने तुम्हारा घर देखा है, मैंने तुम्हारा महल देखा हूँ जन्नत के अंदर और तुम्हारी हूर को भी देखा है, तो फौरन मुझे तुम्हारी गैरत याद आई कि मैं तुम्हारी हूर को देखूं, ये बात तुमको पसंद नहीं आएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना नहीं चाहते थे, अचानक निगाह पड़ गई, तो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह फेर ली। तो हज़रत उमर से जब कहा, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अलैका अगारु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके ऊपर गैरत करूँगा? तो वो एक मर्द की या एक कौम की गैरत ये है कि वो एक गलत चीज़ को देखकर खामोश ना रहे,
बल्कि उसके अंदर एक हमियत, एक गिरत जागे और वो अच्छे काम की तरफ, अच्छी चीज की तरफ उसका दिल उसको उभारे और उसका कोई इकदाम उठाया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गिरत की बात वहाँ बताई। अब ज़माने हाल यानी मौजूदा ज़माने के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हज़रात भी जानते हैं, पुराना ज़माना ऐसा था कि सहाबाए किराम का और ताबईन ताबईन निज़ाम का, तबे ताबईन, बाद के ज़माने में लोगों के अंदर मुसलमान सारी दुनिया के लिए एक नमूना थे। सारी दुनिया के इंसान इंसानों में मुसलमान एक नमूना थे सारी दुनिया के इंसानों के लिए कि अच्छाई का पैकर थे, अच्छाई का नमूना थे। लोग मुसलमानों को देखकर अच्छे काम और अच्छाई को लेते थे। लेकिन आज हम गैरों के साथ रहते, उठते, बैठते, चलते फिरते हमारी गिरत यहाँ तक पहुँच गई है, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, क्या कहूँ, हमारे मुसलमानों की बच्चियाँ गैरों के साथ चली जा रही हैं। माँ-बाप देखते के खामोश रह जाते हैं। ये गिरत इसको कहते हैं। माँ-बाप उस बच्चे को रोकें, उस बच्चे को अच्छी तरबियत करें, अच्छी तरीके से सुधारें, दीनी तालीम दें और अखलाकी तालीम दें। उस वक़्त वो बच्चे अच्छा कदम उठा सकते हैं। लेकिन माँ-बाप की भी एक कमी है, ये गलती है कि अगर माँ-बाप बच्चों को दीन का इल्म नहीं देंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं बताएँगे, तो बच्चे नादान हैं। वो उनकी उम्र जो है, वो नौजवानी की उम्र में बच्चे इस तरीके से करते हैं, तो बच्चों को भी सँभलना चाहिए, सोचना चाहिए, माँ-बाप का ख़्याल करना चाहिए। अगर लड़की गलती करती है, तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगी, तो मेरे अब्बा का सर क्या होगा? क्या मुआशरे में अवाम में मेरे अब्बा शान के साथ सर उठाकर फिर सकेंगे, मेरे भाई सर उठाकर फिर सकेंगे या मेरे रिश्तेदार या अगर शादीशुदा है तो क्या मेरा शौहर सर उठा के फिर सकेगा, मेरी औलाद सर उठा के फिर सकेंगी। तो ये सब सोच करके इंसान के दिल के अंदर उन गलत चीज़ों से, बुरे कामों से बचने का ख़्याल आना चाहिए और माँ-बाप भी इस तरीके से तरबियत करेंगे, तो बच्चे अच्छे राह में चल सकते हैं। लेकिन आज मॉडर्निज़्म के तौर पर, फैशन के तौर पर आज माँ-बाप भी बच्चों को ऐसे-ऐसे कपड़े पहनाते हैं, अल्लाह की पनाह। तंग लिबास, चुस्त लिबास, पतले लिबास और भड़कीले लिबास और लोगों को राग़िब करने वाले लिबास। तो इस तरीके से लिबास पहनाते हैं माँ-बाप अपने बच्चों को, तो लाज़िमन ज़रूरी है कि उसका नतीजा तो बुरा ही निकलेगा। तो वहाँ ग़ीरत जागना चाहिए कि हम ऐसे काम ना करें, ऐसा लिबास ना पहनाएँ कि जिसकी वजह से हमारी बच्चियों पर बुरी निगाह डालने वाले निगाह डाल सकें। तो इससे हमको बचना चाहिए और क्या करना चाहिए हमको? अपनी औलाद को सुधारना चाहिए, अपनी औलाद को सीधे रास्ते में ले जाना चाहिए, तभी चल कर के हमारी औलाद हमारी इज़्ज़त का एक हमारी इज़्ज़त की निशानी है, तो वो हमारी इज़्ज़त को बरकरार रख सकेंगे, बचा सकेंगे। हम भी मुआशरे के अंदर सर उठा के अच्छी ज़िंदगी इज़्ज़त की ज़िंदगी, शान-ओ-शौकत की ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। तो इसलिए चाहिए कि हम पहले अपनी औलाद को सुधारें, अच्छी तरबियत करें और उनका उठना-बैठना, खाना-पीना, चलना-फिरना, रहन-सहन, लिबास उन सब पर कड़ी निगाह रखेंगे, तो हमारी औलाद हमारी ग़ीरत को बेग़ीरत नहीं करेंगे, हमारी ग़ीरत नहीं जाएगी। लेकिन आज छोड़ दिया जा रहा है। सिनेमा के शौक में, फैशन के शौक में और नई तहज़ीब के शौक में, मग़रिबी तहज़ीब के शौक में हमारे औलाद आज ऐसे-ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हैं। बच माँ-बाप के सामने भी, भाइयों के सामने भी बहन ऐसे कपड़े पहनती है और दूसरों के साथ चलना-फिरना और दूसरों के साथ सिनेमा को जाना और पार्कों में जाना, मिलना और ये बेपर्दगी अब आम हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी ग़ीरत चली गई। अगर हम गैरतमंद आदमी है, गयूर आदमी है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि उसकी बेटी या उसकी बहन या उसकी रिश्तेदार कोई भी हो, गैर मर्द के साथ जाए, उस तरीके के काम करे या वैसा लिबास पहने, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, सँभाल नहीं सकेगा। तो इसलिए इसे कहते हैं गीरत। तो आज गीरत जाने के कई असबाब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना ऐसा आएगा क़यामत से पहले-पहले मेरे बाद तुम ऐसा ज़माना देखोगे
کہ ہر برائی عام ہو جائے گی، قیامت کے پہلے ہر برائی عام ہو جائے گی۔ تو ان برائیوں سے بچنا، ہم خود بھی بچنا چاہیے ہمیں، اور اپنے گھر والوں کو یا اپنے جتنے ماتحت ہیں ان تمام لوگوں کو ان کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے ان کو ان برے کاموں سے، برے عادتوں سے، برے صحبتوں سے بچائیں گے تو ہماری غیرت جاگے گی۔ اور اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری غیرت چلی گئی ہے۔ جب انسان کی غیرت چلی گئی تو گویا سمجھے کہ وہ بے حس ہے۔ اب جب انسان بے حس ہو جاتا ہے، وہ عربی میں ایک جملہ ہے، اذا فاتت الحیا فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو گئی ہے یا تمہاری غیرت چلی گئی ہے تو جو چاہو کر لو۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غیرت کو واپس لائیں، اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیں۔ تو پہلے سے اگر ہم شروع سے بات لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کا خیال کرتے ہوئے پہلے ہم اپنے عقیدے کو سدھاریں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ جہاں تک ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے جتنے بھی پہچانت کے لوگ ہیں اور دوست احباب ہیں، ان تمام لوگوں کو اس اللہ کی غیرت کا احساس دلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے ایسے کاموں سے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہم شرک و بدعت کے ماحول سے لوگوں کو نکالیں، سمجھائیں اور سیدھے راستے پر لانے کی پہلی کوشش وہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری کوشش یہ ہے کہ آدمی اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ان کا خیال کرے اور ان کو غلط کاموں سے، برے کاموں سے روکے۔ اگر نہیں روکتا ہے تو سمجھو کہ اس کی غیرت چلے گی۔ جب کسی قوم کی یا کسی آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو برائی نہیں لگتی، وہ برائی کو برائی سمجھتا نہیں ہے، بس اس کے لیے وہ ایک عام چیز ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں سنیما کی جو عورتیں سنیما میں کام کرتی ہیں تو وہ کیا ہے، ان کے ماں باپ بھی دیکھتے ہیں، ان کے بھائی بہن بھی دیکھتے ہیں، وہ اس خوشی میں ہے کہ پیسہ کما رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ سنیما میں ہوتا ہے، ایک ایک عورت 10 آدمیوں کے ساتھ ایکشن کرتی ہے اور پیسہ کماتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ایکشن کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غیرت جو ہے وہ مر جاتی ہے، ان کے گھر والوں کی غیرت بھی اور اس انسان کی غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو غیرت کے تعلق سے ایک بات بتاؤں، یہ جذبہ خود عورت کے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے، خود عورت کے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ میں غلط کام کبھی نہیں کروں گی۔ یہ غیرت مرد کو زیادہ آتی ہے اور عورت کے اندر بھی یہ غیرت کا مادہ اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آپ وہاں موجود تھے اور لوگوں کو بلا بلا کر کے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو جوق در جوق لوگ کیا ہیں اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ جتنے لوگ تھے وہ تقریباً پورے کے پورے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھے، کلمے کا اقرار کیا اور مسلمان ہوتے گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے گئے، کن باتوں پر؟ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور برے کاموں سے بچیں گے اور نیک کاموں میں آگے بڑھیں گے۔ تو اس وقت جب بیعت لے رہے تھے تو ہندا جو عورت تھی، ابو سفیان کی بیوی، جب وہ ایمان لائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے ایمان کے اقرار کرنے لگی تو پوچھتی ہے کہ آپ کن باتوں پر ہم سے بیعت لے رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتوں کو گنایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گی اور چوری نہیں کرو گی، جھوٹ نہیں بولو گی، زنا نہیں کرو گی۔ تو فوراً ہندا جو بعد میں مسلمان ہوئی کہتی ہیں کیا کوئی ایک شریف عورت یہ کام کر سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ ابھی مسلمان نہیں تھی یا ابھی کلمے کا اقرار کر رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ایک اچھی عورت، نیک اخلاق والی، اچھے اخلاق والی عورت، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، کیا زنا کر سکتی ہے؟ اور اس بات کا خیال اس کے دل میں آ سکتا ہے، یعنی مطلب وہاں عورت کو بھی غیرت جاتی ہے کہ نہیں، مجھے عزت کی زندگی گزارنی چاہیے اور میرے شوہر کے ساتھ میں زندگی گزارنی چاہیے تاکہ میرے خاندان والوں کا سر اونچا رہے
और मैं मेरे शौहर का सर ऊंचा रहे और वो समाज में इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। तो उस वक्त उन्होंने कहा, क्या एक अच्छी औरत, क्या एक अच्छी मतलब अच्छा इंसान ये काम भी कर सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहले मैं जो बात बताया था कि अल्लाह ताला इंसान के दिलो-दिमाग के अंदर, इंसान के सृष्टि के अंदर, इंसान की बनावट के अंदर इन चीज़ों को रख के पैदा किया है। शर्म, हया, ग़ीरत, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला रख कर के पैदा किया है कि इंसान अच्छे को अच्छा समझे, बुरे को बुरा समझे और अच्छे को अच्छा समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश करे, अमल करे और दूसरों को भी अमल करने की राह पर चलाए और खुद भी बुरी चीज़ों से, बेहयाई के कामों से और बेहयाई की चीज़ों से बचे, ताकि उसकी ग़ीरत को ठेस ना लगे। उसकी ग़ीरत जाती ना रहे, बल्कि वो नेक कामों में आगे बढ़ता रहे। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो इंसान को मुनकरात से यानी बुरे कामों से और फ़हश कामों से, बेहयाई के कामों से रोकती है। तो नमाज की पाबंदी हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बुरे कामों की आदत भी खत्म हो जाएगी और बुराइयों से भी हम बच सकेंगे और हमारी ग़ीरत हमेशा ज़िंदा रहेगी। हमारी ग़ीरत खत्म नहीं होगी, हमारी ग़ीरत कहीं नहीं जाएगी। तो तो इन्हीं चंद बातों पर मैं आज की मुख्तसर तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अगर कोई 5 मिनट में आपको कोई डाउट वग़ैरह है तो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीक, नफ़अल्लाहु बिकुमुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मोहतरम भाइयों, अब तक हम शेख मोहतरम से सुन रहे थे कि गैरत कहाँ चले गई। इस मौजू पर शेख मोहतरम ने कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल खिताब फरमाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शेख मोहतरम के इल्म में, उम्र में, अमल सालिह में और अहल अयाल में बरकतों से नवाजे, आमीन या रब्बल आलमीन। टॉपिक से रिलेटेड अगर से किसी भाई का सवाल है तो हैंड रेज करिए, इंशाल्लाह उनको मौका दिया जाएगा। रकीब बादशाह भाई, अपने पास अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, अक्सर हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि जो ख़वातीन होती हैं वो पर्दा तो करती हैं, लेकिन वो अपने घरों की यानी दहलीजों में ही खड़ी रहती है। तो क्या इस पर भी मर्दों का मुखाजा किया जाएगा शेख? हाँ। ये आपने जो सवाल किया है, ये बहुत अहम सवाल है कि अल्लाह ताला ने औरत को घर के अंदर रहने के लिए कहा है, घर से बाहर निकलने के लिए इजाज़त नहीं दिया है। वला तबर्रुजन तबर्रुजुल जाहिलियती कहकर अल्लाह ताला के जाहिलियत की जो बनाव श्रृंगार या मामूली अंदाज में भी औरत अगर बाहर खड़ी होती है दहलीज में, तो वो इसी चीज़ में दाखिल होती है। इसके लिए मैं आपको एक सहाबी का वाक़या सुनाता हूँ कि एक मरतबा एक सहाबी कहीं शिकार पे या कहीं काम पे गए थे, घर वापस आए, तो क्या देखते हैं कि उनकी बीवी दहलीज में खड़ी हुई है। तो उनके हाथ में भाला था, वो भाला लेके मारने के लिए दौड़ दौड़ पड़े कि क्या तुमको पता नहीं है कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, औरत को पर्दे में रहना चाहिए, तुम अंदर रहे बगैर क्यों दहलीज में आ गए हो? तो उतने में वो सहाबी की बीवी फरमाती हैं कि आप मेरे शौहर, आप मुझ पर गुस्सा ना हो, बल्कि इसकी वजह पूछें, आप मुझे पहले पूछिए, दरियाफ्त कीजिए। आप कुछ जाने बगैर मुझ पर नाराज़ मत होइए। तो साहबी पूछते हैं, क्या बात है? तो कहते हैं कि घर के अंदर साँप आ गया है। तो साँप से डर करके मैं यहाँ आकर खड़ी हूँ। मैं दूसरे किसी और इरादे से यहाँ आकर नहीं खड़ी हूँ। तो फिर अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ साँप मौजूद था, तो उस साँप को वो साहबी मार देते हैं। तो इस तरीके से तो दहलीज में बगैर सबब के, बगैर पर्दे के खड़े होना भी ये ग़ीरत के अंदर शौहर की, घरवाले की जो भी हैं, शौहर हो, ससुर हो, देवर हो, जो भी बेटा हो, कुछ भी हो, तो उनकी ग़ीरत को ठेस पहुँचती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। सुलेमान भाई, अपने पास अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, తెలుగు में पूछ सकता, उर्दू में बोलना? हाँ, पूछिए, कोई बात नहीं।
జీ షేక్ ఆపు అది జన్నత్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మేరాజ్ యాత్రలో ఆ, మేరాజ్ హలో హలో చెప్పండి, వినిపిస్తా ఉంది, ఆ, చెప్పండి. మేరాజ్ యాత్రలో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హూరు కన్యకు చూసి అదే ఉమర్ రదియల్లాహు గారి యొక్క ఇంటిని అక్కడ ఆ, హూర్ను చూసి నజరు మార్చుకున్నాడు, నజర్ కిందికి దించాడు అన్నారు కదా. అంటే నా ప్రశ్న ఆ. ఏంటంటే ఆ అంటే జన్నత్ లో కూడా పరదా ఉందా? పరదా పాటించాల్సిందేనా జన్నత్ లో కూడా? పరదా అంటే వారి వారి ఇంట్లో వారితో వాళ్ళు జీవనం గడుపుతారు. ఆ, ఒకరు ఇంకొకరి వైపు చూడరన్నమాట. చూడడం అంటే ఏమిటి? పాపకార్యం అది. వేరే వారి భార్యను గాని, వేరే వాళ్ళ స్త్రీలను దురుద్దేశంతో చూడడము, లేదా ఆహ్, వాళ్ళ వైపు చూడడం అంటే వాళ్ళ వ వాళ్ళ వస్తువులను మనము చూసినట్టు. అది ఏ మనిషి గూడా ఒప్పుకోడన్నమాట. మనము ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఎట్లయితే ఒప్పుకోమో, అలాగే ఆ లోకంలో గూడా మనం ఒప్పుకోము. ఎందుకంటే జన్నత్‌లో ఏమున్నాయి స్వర్గంలో? ప్రతి మనిషికి ఏమి కోరుకుంటాడో అవన్నీ అక్కడున్నాయి. లహుం మా తష్టహీహిల్ అన్ఫుస్ అని ఖురాన్‌లో ఉండాది. ఏమంటే ఆ మనిషి ఏమి కోరుకుంటాడో ఆహ్, ఆ వ ఆ వస్తువులు, ఆ సంఘటనలు మాత్రమే అక్కడ జరుగుతాయి. ఏ మనిషి కూడా తన భార్యను వేరే వాళ్ళు చూడడము ఇష్టపడడు. కాబట్టి హూర్ల విషయం కూడా పరదా లేకపోయినా ఒకవేళ వాళ్ళు వాళ్ళ మహల్‌లో, వాళ్ళ సొంత బంగ్లాలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ లోపల పరదా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే భార్యాభర్తలకు పరదా లేదు. వేరే వాళ్ళతో పరదా ఉంది కాబట్టి లోపలున్నప్పుడు వాళ్ళు పరదా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. జీ షేక్ జజాకల్లాహ్ ఖైర్, అసలు జజా షేక్, బారకల్లాహ్ ఫీక్. మంచిది. शायद किसी का सवाल नहीं, इसी पर इत्तेफाक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ हमकिनार किया है। हम अल्लाह ताला के शुक्र के बाद शेख मोहतरम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला शेख मोहतरम की इस खिदमत को कबूल फरमाए और मज़ीद दीन की खिदमत ले, आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो ज़ूम पर मौजूद हैं और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हस्बे मामूल 2 ऐलानात के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। पहला ऐलान ये है कि AIGEC टीम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सब भी इसको सब्सक्राइब कर ले। उससे फ़ायदा ये है कि AIGEC के प्लेटफॉर्म से जो भी दुरुस्त चलते हैं वहाँ पर अपलोड होकर रहते हैं, जब भी चाहें तो आप देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा ऐलान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह AIGEC के प्लेटफॉर्म से हफ्ते में 2 उर्दू दर्स और महीने में 2 तेलुगु दर्स चलते हैं। मैसेजेस के ज़रिए आप तक खबर पहुंचा दी जाएगी। तमाम अहबाब ज़रूर इसमें शिरकत करने की कोशिश करें। इन्हीं कुछ दुआई कलिमात के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिर में सब कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।